भंडार है जो शरीर, सांस और मन को जोड़ता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और 21 जून को विश्व योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर आयोजित हो रहे इस खास वेबिनार में आप सबका स्वागत है। नमस्ते योगा, हेल्दी यूथ फॉर हेल्दी नेशन। और इस खास वेबिनार का आयोजन किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और फिकी ने मिलकर, और हमारे साथ बहुत खास मेहमान इस पैनल डिस्कशन में, इस वेबिनार में आज जुड़े हुए हैं। सबसे पहले माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी। प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। फिकी प्रेसिडेंट और अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप की जॉइंट एमडी संगीता रेड्डी जी। संगीता जी, वेलकम। और जब हेल्दी यूथ की बात हो रही है तो 3 युवा सांसद आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनमें से 2 जुड़ चुके हैं और एक कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। लद्दाख से श्री जामयांग थेरिंग नामग्याल जी, बहुत बहुत स्वागत है। साउथ बैंगलोर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या जी, नमस्कार। और कूच बिहार से सांसद निशित प्रामाणिक जी, लेकिन उन्हें भारत चीन सीमा पर शहीद हुए वीर विपुल रॉय जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने जाना था, तो उस वजह से वो कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही हमारे साथ है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में सेक्रेटरी श्री आनंद कुमार जी, और वेट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट सपना व्यास अभी शायद जुड़ी नहीं है, लेकिन वो भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगी। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, और जो लोग इस वेबिनार का हिस्सा बने हैं उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं वेलकम एड्रेस के लिए निवेदन करना चाहूंगी संगीता रेड्डी जी से, टू प्लीज वेलकम द पैनलिस्ट एंड आवर व्यूअर्स। Good evening and namaskar. It's a great pleasure to offer a welcome address on behalf of FICCI and the Ministry of Culture. I think today's program, Namaste Yoga, says 2 very important words. Namaste, which in these times of COVID has become not just an Indian symbol, but an international symbol of staying safe. And when you combine that with yoga, which is not an exercise, it's not a workout, but work in, as was beautifully said. But I think yoga, most importantly, is a way of life. It's a part of our culture, it's a part of our heritage, and it's one of our greatest weapons. As the world today is fighting, the war which we spoke about, one of the biggest war is happening with an invisible enemy. The pandemic is going on. And in that pandemic, it's not guns, it's not bullets, but it's an invisible virus. And the strongest defense we have against that virus is an interesting aspect of staying close to each other by staying distant, of using our hands by keeping them clean and staying away from people, but I think most importantly is staying fit. So in these times of COVID, it's a tremendous and most appropriate thing to talk about and have this discussion of Namaste Yoga, healthy youth for healthy nations, because if we can train our youth, we can create role models from something which is so ancient and so important in our history and our culture, and give that and empower our youth with this very powerful tool. I think India can yet again take the lead in finding new and innovative ways to beating healthcare crisis, psychological and social problems as well, because yoga gives you an inner strength which enables you to handle literally any problem. I congratulate the Honorable Prime Minister for making yoga a worldwide phenomenon. And it is my great pleasure to welcome, even though this is a joint program, but we're extremely happy to be honored by the presence of Shri Prahlad Singh Patel ji, the Honorable Minister of State for Culture and Tourism, by our 3 young members of Parliament, Shri Namgyal ji, Shri Surya ji, and Shri Pramanik, who will be joining us soon. Sapna Vas as well, everybody's waiting to hear from you. I just want to end by saying that the whole world and our country have been through a tremendous turmoil. The pandemic has taken its toll, both physical, mental, medical, and economic. And it is in times like these that the innate strength of people comes out. So we strengthen ourselves by going back to our roots and our heritage. We strengthen ourselves by staying fit. We strengthen ourselves with positivity. So I wish this to all of you and warmly welcome you
to what I believe is a very significant initiative, and thank all the organizers and everyone who's helped to put this together. All the very best and namaskar. Talking about namaste, it's a wonderful reminder for all of us. Namaste karna hai ek dusre se, and while maintaining social distancing. Now for a special address, I would request Secretary, Ministry of Culture, Government of India, Shri Anand Kumar ji. Mantri Prahlad Singh Patel ji, Manya Members of Parliament, Shri Jamyang Shering Namgyal ji, Shri Tejasvi Surya ji, Shri Nishit Pramanik ji, Madam Sangeeta Reddy, President FICCI and Joint MD of Apollo Hospitals, Sapna Vyas जी, एवं सभी अतिथिगण, मैं आप सबका बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब आज यहाँ इस सामाजिक कल्याण वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए उपस्थित हुए हैं. Ministry of Culture had been long thinking about starting a series of such webinars, and I'm happy that we are starting our first webinar on yoga, which is so important in today's environment. आज की कठिन परिस्थितियों में जबकि पूरा विश्व एक अदृश्य शत्रु से जंग लड़ रहा है, ऐसे समय में स्वास्थ्य ही एक व्यक्ति का एकमात्र शस्त्र साबित होगा जिससे वह विजयी हो पाएगा. योग सही तरह से जीने का विज्ञान है और इसलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए. यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावात्मक, आत्मिक एवं आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है. योग का अर्थ एकता या बांधना है. योग भारतीय ज्ञान की 5000 वर्ष पुरानी शैली है. हालांकि कई लोग योग को केवल शारीरिक व्यायाम ही मानते हैं, जहां लोग शरीर को मोड़ते, मरोड़ते, खींचते हैं और श्वास लेने के जटिल तरीके अपनाते हैं. यह वास्तव में केवल मनुष्य के मन और आत्मा की अनंत क्षमता का खुलासा करने वाले इस गहन विज्ञान के सबसे सही पहलू ही है. योग का सही मायने में अर्थ इन सबसे कहीं विशाल है. योग विज्ञान में जीवन शैली का पूर्ण सार आत्मसात किया गया है. योग की उच्च अवस्था समाधि, मोक्ष, केवल्य आदि तक पहुंचने के लिए अनेकों साधकों ने जो साधन अपनाए, उन्हीं साधनों का वर्णन योग ग्रंथों में समय समय पर मिलता रहा है. उसी योग के प्रकार से जाना जाने लगा है. उसी को योग के प्रकार से जाना जाने लगा है. योग की प्रमाणिक पुस्तकों में शिव संहिता और गौर शतक में योग के 4 प्रकार का वर्णन मिलता है. योग अभ्यास का एक प्राचीन रूप जो भारतीय समाज में हजारों साल पहले विकसित हुआ था और उसके बाद से लगातार इसका अभ्यास किया जा रहा है. इसमें किसी व्यक्ति का सेहतमंद रहने के लिए और विभिन्न प्रकार के रोगों और अक्षमताओं से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यायाम शामिल है. यह ध्यान लगाने के लिए एक मजबूत विधि के रूप में भी माना जाता है, जो मन और शरीर को आराम देने में मदद करता है. शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग मदद करता है. शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है. यह तनाव और चिंता का प्रबंधन करने के लिए भी सहायता करता है और आपको आराम से रहने के लिए मदद करता है. योग आसन शक्ति, शरीर में लचीलेपन और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए जाना जाता है. योग एक कला है. योग एक शिक्षा है और योग, अगर मैं कहूं कि एक अदृश्य दवाई है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ती है, हमें मजबूत बनाती है, हमें शांतिपूर्ण बनाती है. योग आवश्यक है क्योंकि हमें फिट रखता है, तनाव कम करता है और समग्र स्वास्थ्य को बनाए और एक स्वस्थ मन की अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है.
आज का जो कठिन परिस्थिति कोविड-19 की वजह से है, इस पे योग हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमारे जो लंग की कैपेसिटी है उसको बढ़ाएगा। मैं आप सबकी स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद कुमार जी। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मंत्री जी से कि वो अपने कीनोट एड्रेस के माध्यम से योग पर और योग दिवस के आसपास अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 तारीख को है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। दुनिया ने योग को स्वीकार किया, अगर इसके लिए कोई निमित्त है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। इस पैनल को देखकर मैं खुश हूं और सम्मानीय सुनीता जी, हमारे लेह के सांसद जो खुद अपना जीवन एक योगी की तरह भी जीते हैं, नामयाल जी, हमारे दूसरे जो सांसद हैं सूर्या जी, वो उनका जीवन भी मैं समझता हूँ जो चयन किया गया है वो जबरदस्त इस पैनल का चयन है। निश्चित अभी नहीं आए हैं, निश्चित का हम जब चेहरा देखेंगे तो हमको लगेगा कि नहीं, हम शायद हमने ठीक पैनल को यहाँ पर चुना है। सपना जी वो तो कर योग की अपने आप में स्वयं वो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर तरीके से कर भी पाएंगी और बता भी पाएंगी। और इस पूरे पैनल को हमारे सेक्रेटरी आनंद जी, जिनने अभी योग के बारे में बातें कही हैं और जो सबको समेट कर इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है चांदरुद्र जी, मैं लंबी बात ना करते हुए कीनोट में ये बात कहूंगा कि अगर इस कोरोना के कालखंड को हम देखते हैं और जिस परिस्थिति में हम एक दूसरे से वर्चुअल बातें कर रहे हैं, ये ऐसा समय नहीं है कि जिससे लिए हमें कोई घबराने की जरूरत है। ये बात प्रधानमंत्री जी ने बार बार कही है, लेकिन एक दौर है जो आता है, जो परीक्षा का समय है, जो मैं मानता हूं, और किसी भी योग पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को कभी निराश होने की इजाजत भारतीय संस्कृति नहीं देती है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जब भी कोई प्रकृति के द्वारा या मनुष्य के द्वारा विपरीत परिस्थिति आए तो उस विपरीत परिस्थिति को पहले दिन ही आपदा मान लेना, शायद ये संस्कृति को जो ना जानने वाले लोग हैं वो स्वीकार करते हैं। हम तो ये मानते हैं कि ये परीक्षा का कालखंड है, परीक्षा में नेतृत्व पास हुआ है, देश भी पास होगा और दुनिया में शायद इससे ऊपर जाने का हमारे पास में रास्ता होगा और उसका परिणाम आज दिख भी रहा है। मैं 3 अनुकूलताएं देखता हूं। पहली अनुकूलता है जब हम कहते हैं कि स्वस्थ युवा और स्वस्थ देश, ये सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर नहीं है। जब हम योग की बात करते हैं या हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति की बात करते हैं, उसमें लेह की चिकित्सा पद्धति के बारे में नामयाल जी कहीं संकेत करेंगे। मैं भी गया था, तब मैंने देखा है। मुझे लगता है चाहे दक्षिण की हम अपनी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को देखें, कुल मिलाकर भारतीय जीवन पद्धति को संभाल कर रखने वाली प्राचीन जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनमें एक योग ऐसा है जो सिर्फ बीमारी के लिए नहीं, शरीर भर की सामर्थ्य नहीं देता, उसके शब्दों का चयन किया वो ऋचा जी ने किया है, वो ज्यादा प्रमाणित और ज्यादा बेहतर है कि श्वास से लेकर शरीर से लेकर ऊपर तक जाने का जो हमारा मार्ग है वो योग है। लेकिन अगर शरीर स्वस्थ है तभी हम दूसरे की मदद कर पाएंगे। अगर शरीर में अस्वस्थता से लड़ने का सामर्थ्य है तो शायद रोग हमको व्यापेगा नहीं। हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति में इसी बात का उल्लेख था कि हम शरीर को ऐसे साधे कि कोई छोटी मोटी बीमारी हम पर सवारी ना कर सके, वायरस हम पर हमला ना कर सके। ये सामर्थ्य अगर किसी को पैदा करनी है तो वो औषधि से नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं भारतीय जीवन पद्धति या भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से होगी, या योग से निरोग होने का जो मार्ग है उसका आपको अनुगमन करना पड़ेगा। मैं शायद इतना ही कहना उचित मानता हूं। मैं अनुकूलता देखता हूं एक संस्कृति और पर्यटन मंत्री होने के नाते कि हमारे जीवन शैली में पुस्तकीय ज्ञान भले किसी को ना हो, लेकिन उसके पास में जो ख्याति है, चाहे वो सहज योग की हो, उसको पता ही नहीं चलता कि वो योग कर रहा है और सहज योग के माध्यम से वो अपनी जिंदगी में सफलता अर्जित करता है। मैंने योग बहुत नहीं किया, बचपन में कभी हमने आसनी की होंगी, लेकिन नंदा परिक्रमावासी होने के नाते सहज योग के माध्यम से जब मैं जीवन जीता हूं
तो जब मैं ले गया तो ले में जाके मुझे लगा कि नहीं, इस उम्र में भी अभी भी मैं ले के मैं जाकर विश्राम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं अपना काम कर सकता हूँ। ये जब लगा तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी सामर्थ्य नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की पुण्याई है जो उन्होंने हमें अपने जीवन में जो संस्कार दिए थे, वो सामर्थ्य ने हमको वहां पर अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने का मौका दिया। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। उन नौजवानों से मैं जरूर कहूंगा जिनका शायद कभी भरोसा डिगने लगता है अपनी जीवन पद्धति पर, मैं उनसे विनती करूंगा, अगर वो वेबिनार में मेरी बात को सुन रहे हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि हमारी जीवन पद्धति, हमारी जीवन शैली, हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति भारतीय, इसका अवलंबन करिए, उस पर भरोसा रखिए, उस पर चलने की कोशिश करिए। ये ऐसी सामर्थ्य देगा जो हम, मेरे जैसा व्यक्ति जो आज 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और उसके बावजूद भी हम आपदाओं में, इस कोरोना के काल में सैनिटाइजेशन से लेकर मैं सारे कामों में अपनी भागीदारी करता रहा हूँ। सावधानी अपनी जगह पर है, दुनिया के पास में इलाज नहीं होगा, लेकिन भारत के पास वो सामर्थ्य है कि हमारे पास में संसाधन भले कम हो, साधन जिनके पास थे चिकित्सा के, उनके पास में मौतों का अंबार है। हमारे पास जनसंख्या का घनत्व है और उसके बाद में स्वास्थ्य सुविधाएं कम है, लेकिन साधना के माध्यम से देश को बचाने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। इससे बड़ा प्रमाण हो नहीं सकता। हमारे पास में साधन कम है, लेकिन साधना का बड़ा अवलंबन हमारे पास में है और इसलिए मुझे लगता है योग उसकी बड़ी सामर्थ्य है। विश्व योग दिवस आएगा, देश और दुनिया उस पर अपना रास्ता तय करे। नौजवान हो चाहे वृद्ध हो, अगर वो घर में विश्व योग दिवस के दिन अगर जो भी, चाहे कोई प्राणायाम करेगा, कोई सूर्यासन करेगा, जो उसको करना है उसको जरूर करना चाहिए, यही मैं विनती करूंगा। आज हम अपने नौजवानों से अपने इस बारे में बात करने के लिए यहाँ पर हैं, इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूँ और ऋचा जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते योगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी। और आपने कहा कि आपने योगा नहीं किया है जी। Prahlad ji, I just want to say that every year on World Yoga Day, we do yoga across all the Apollo hospitals. And we've now incorporated yoga into the rehab program of post-surgery. And we currently have over 120 physiotherapists who are trained in teaching yoga to our patients. So this is Jaggi Vasudev, Sadhguruji at Isha Foundation are day sent trainers. And so we're trying to create yoga warriors so that they, and this has been going on for 3 years now. I thought you'd be happy to hear that. नमस्ते संगीता जी। और मैं कहना चाहती थी कि मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने कभी ज्यादा योगा किया नहीं है, बट मुझे लगता है बचपन से हमारी जिंदगी, हमारे रोज के जीवन में कई ऐसी चीजें हैं जो हमें पता नहीं होता कि हम किसी तरह से योग कर रहे हैं। चाहे हमें सिखाया गया हो कि जब गुस्सा आए तो गहरी सांस लो, या आज मैंने सोचा कि हम हमेशा जब प्रोग्राम्स एंकर करते हैं तो पोडियम पे खड़े होते हैं, घंटों खड़े रहते हैं। आज मैंने सोचा मैं सुखासन में बैठकर ये वेबिनार करूंगी। तो ऐसे में ही खाना खाना हमेशा कहा जाता है कि बहुत अच्छा होता है कि अगर सुखासन में बैठकर आप खाना खाएं। तो मुझे लगता है बचपन में तो बहुत किया है, अभी भी करता हूँ जी। तो चलिए, हम हेल्दी यूथ की बात कर रहे हैं, देश के युवाओं की। तो 2 युवा सांसद तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सपना व्यास, वेट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, फिटनेस ट्रेनर हमारे साथ हैं। और कह सकते हैं कि आज की तारीख में अगर आप युवाओं से पूछें तो सबसे पॉपुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर लोगों से पूछा जाए तो जो 2 हैं वो हमारे साथ जुड़ गए, जामयांग जी और तेजस्वी जी। मेरा सवाल आप दोनों से है। तेजस्वी जी, प्रॉब्ली यू वुड वांट टू आंसर फर्स्ट। आपकी लाइफ में योगा कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जनवरी में हमने आपकी तस्वीरें देखी थी कि एक बड़ी खूबसूरत सी लोकेशन पर जाकर आपने ट्विटर पे अपनी तस्वीरें डाली थी योग करते हुए, उसमें धनुरासन था, मुझे जो याद आ रहा है। क्या वो सिर्फ एक फोटो ऑप था या एक्चुअली योग आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है? नमस्ते रीचा जी। और मैं सबसे पहले आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी को प्रणाम और आदर पूर्वक नमस्कार देता हूँ। In the last so many years that I have, in the last 1 year that I have interacted with him,
his commitment to reviving culture and the traditions of this country is exemplary. And I would want to congratulate Sangeeta ji and Fiki for organizing this wonderful webinar where all of us can give our thoughts. At the very outset, I would want to give those thanks. Yoga has been a very important aspect of my life. Both my parents, my mother and father, have taken to yoga every single day of their lives from the last at least the 25-30 years that I have seen them. So and I am a first hand witness to the benefits of yoga, because my mother was suffering from asthma, and because of regular practice of yoga she stays in the pink of her health, and she's able to compared to other women of her age, my mother's fitness levels, her zest for life is something exemplary, and it is again thanks to yoga. In the same way, my father was my first yoga guru. He taught me the first Surya Namaskaras, the first simple asanas, and would always encourage me to go to the nearest yoga center run by RSS. So all of these put together have brought yoga into my life from my childhood. And I have continued doing yoga. Every day I try to practice yoga for at least 45 to 1 hour, for 45 to 60 minutes. And the beauty of yoga and yoga practice is, I just want to, I'm sure you would have, Richa ji, heard of this quote. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि. The beauty of yoga is it is not just a physical exercise. Like the very first line of this shloka says, Yogena chittasya padena vacha. The first purity, the first cleansing through yoga happens for your mind. The second cleansing happens through the body. The third cleansing happens through the entire life of speech, body, the soul. Yeah. So this holistic approach towards life is what yoga is so unique about, and therefore yoga has brought in a very important aspect of my life. Therefore, I try to keep yoga in my life as much as possible. So yes, that's the quite a long answer to your short question. Okay, no, I'll come back to you to ask your favorite asanas. लेकिन पहले जामयांग जी से पूछते हैं, क्योंकि ये जिस इलाके से आते हैं वहाँ बहुत strong immunity, breathing, in fact, बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए, to survive in those conditions. जामयांग जी, do you practice yoga? Or if not yoga, then what is your fitness mantra? नमस्ते योगा। सबसे पहले मैं भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन करना चाहूंगा, और माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी प्रणाम। और यहाँ पे उपस्थित मैं एक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सबको मैं नमन करता हूँ। एक तो 21 जून को जो इंटरनेशनल योगा डे जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान दे के शुरू किया है, और इस साल तेजस्वी जी जानते हैं इस साल होना था एक्चुअली। अब ये कोविड पेंडेमिक की वजह से नहीं हो पाया। ये हम लद्दाख वासियों के लिए एक मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य की बात हुआ, लेकिन कोई नहीं, हम योगा को आगे कैरी ऑन करेंगे। और उसके चलते हमने लद्दाख से हंड्रेड्स ऑफ यूथ्स को हमने दिल्ली ले जाके वहाँ योगा का ट्रेनिंग दे के आजकल लद्दाख में आके तो हम पूरे तैयारी कर रहा है कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे वर्चुअली हम कैसे इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, और हर एक जान के जीवन में योगा को कैसे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि योगा के महत्व आज भारत देश के साथ साथ पूरे दुनिया जान चुके हैं। और मैं मानता हूँ योगा जो है किसी रीजन, रिलीजन, कास्ट, क्रीड तक ये सीमित नहीं है। ये हर एक जान के जिंदगी में ये एक इनडिस्पेंसिबल एक चीज है जिसको फिटनेस चाहिए।
चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो, चाहे वो मेंटल फिटनेस हो, चाहे वो सोशल फिटनेस हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल फिटनेस हो, हर चीज के लिए योगा जो है एक वन इन ऑल सॉल्यूशन मैं इसको मानता हूँ। और जिस तरह आपने कहा कि लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड बेरन लैंड हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने के लिए आपको हर चीज में एक मजबूती होना पड़ेगा, चाहे वो आपका मेंटल इमोशनल स्टेमिना हो, फिजिकल स्टेमिना हो, इम्यून सिस्टम हो, और खासकर आजकल जो कोविड को लड़ने को लेके एक लद्दाख ने रिकॉर्ड भी बिल्डअप किया हुआ है। इतने पॉजिटिव केसेस आने के बाद भी सिर्फ एक डेथ हुआ, और वो भी कुछ और कारण से हुआ है। हालांकि यहाँ पे जिनको ऑलरेडी अलग अलग बीमारी थे उनको भी पॉजिटिव कोविड हुआ, तब भी वो बिल्कुल क्योर हुआ, वो नेगेटिव बन गया, क्योंकि यहाँ के लोगों के इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है नेचुरली। और साथ ही साथ इस इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग के ऊपर अगर हम योगा करें तो इससे मैं मानता हूँ जो माइंड का जो शार्पनेस है, अटेंटिवनेस है, और आपका जो रिमेम्बर कैपेसिटी जो है, इंटेलिजेंस, वो और भी बढ़ेगा। और अपने जीवन में योगा को कुछ साल पहले से मैंने लाने की कोशिश किया, और जब जब मुझे समय मिलते हैं, चाहे दिल्ली में पार्लियामेंट सेशन चलते हो या लद्दाख में मैं टूर पे हूँ या घर पे हूँ, मैं टाइम निकाल के योगा को अपने आप में प्रैक्टिस करने के मैं बहुत कोशिश करता हूँ, क्योंकि योगा जो है ज्ञान को बढ़ाते हैं, योगा जो है ज्ञान मैंने नॉलेज को बढ़ाते हैं, योगा जो है कर्मा यानी कि सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड नेशन, टुवर्ड पीपल, टुवर्ड नीडी डिजर्विंग, वो योगा जो है आप में वो बढ़ाते हैं। योगा जो है आपके राजा विल पावर को बढ़ाते हैं, योगा जो है आपके भक्ति डिवोशन को बढ़ाते हैं। तो इसलिए योगा जो है एक महत्वपूर्ण एक प्रैक्टिस है। मैं सभी खासकर यूथ्स को, अपने देश के युवाओं को मैं अपील करना चाहूंगा, जितना हो सके योगा को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सारे एनिमीज होते हैं, दुश्मने होते हैं, और उसमें कुछ दुश्मन विजिबल होते हैं, खासकर मेंटल एफ्लिक्शंस, जो मेंटल एफ्लिक्शन होते हैं उसकी वजह से हम रॉन्ग स्पीचेस करते हैं, रॉन्ग एक्टिविटीज करते हैं, रॉन्ग थिंकिंग जो अपने अंदर रखते हैं। योगा करने से ये बॉडी, स्पीच, माइंड सब प्योर करने का एक तरीका जो है ये योगा है। योगा करने से ये सारा आपकी जिंदगी दूर चला जाएगा, जो इनविजिबल एनिमीज है, जो आपके लाइफ को एक गलत डायरेक्शन देते हैं। और खासकर आजकल इस लॉकडाउन की वजह से लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन टाइप के, एक डिप्रेशन टाइप के जो शिकायतें लोगों में आ रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा कि जब जब आपको लोनलीनेस फील होता है, डिप्रेशन फील होता है, जो सैडनेस फील होता है, आप योगा प्रैक्टिस करें। और योगा जो है केवल आपका सिर्फ टाइम पास नहीं करेगा, योगा जो है आपके लाइफ को सुधारेगा, आपके वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ डूइंग, वे ऑफ स्पीकिंग को योगा जो है आपको पूरा सुधार के देंगे। इसलिए योगा का महत्वपूर्ण जो है ये बहुत जितना का है उतना काम है, एक बहुत वास्ट है। मैं संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है रखने की मैंने कोशिश किया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रहलाद जी, ये तो समझ में आ रहा है कि आपकी पार्टी के युवा सांसदों की जो एनर्जी है, चाहे वो संसद में हो चाहे संसद के बाहर, उसमें योगा का एक बड़ा योगदान है। बस मुझे लगता है कि आपको अपने सीनियर्स की तरह, जैसे किरण जी हैं या राज्यवर्धन जी हैं, अपने वीडियोस वगैरह ट्विटर पे डालते रहते हैं, आप लोगों को भी योगा करते हुए अपने वीडियोस डालना आप शुरू कर देना चाहिए। दैट वेज यू विल मोटिवेट अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स आल्सो। आगे डाल रहा हूँ, जो भी सूर्य नमस्कार जो लगभग 1 करोड़ लोग करेंगे, उसका मैं खुद भी डाल रहा हूँ। तो उसके बारे में चाहूंगी थोड़ा और बताएं हम सब लोगों को कि क्या है वो 10 मिलियन। आज के दिन से शुरुआत है, और मैं मानता था कि हमारे जो नौजवान सांसद हैं, सिर्फ उनको पार्टी का सांसद ना माना जाए, बल्कि मैं मानता हूं कि ऐसे नौजवान जो अपने जीवन में स्वयं संयमित जीवन जीते हैं, जो वास्तव में भारतीय संस्कृति भाषणों से नहीं चलती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि प्रवचन से काम नहीं चलता है, आपको जीवन में धर्म को धारण करना पड़ता है। तो योग बातों से नहीं चलता है, योग को स्वीकार करना पड़ता है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बचपन में जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है,
उसी का परिणाम है कि इस उम्र में हम तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी अपना उत्तरदायित्व पूरा कर पा रहे हैं। और इसलिए आज ये वेबिनार है ताकि यंगस्टर्स को ये लगे कि 21 तारीख की तैयारी हमें कैसे करनी है। अकेले प्रधानमंत्री ने निमित्त बनकर पूरी दुनिया में योगा डे के लिए पूरी दुनिया के 178 देशों को तैयार कर लिया, तो ये बात तो साबित हो गई, सबने स्वीकार किया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय नौजवान को या आने वाली पीढ़ी को योगा को मनोभाव के साथ, संकल्प के साथ स्वीकार करना चाहिए। और इसलिए मैंने तय किया कल भी हमारा एक वेबिनार होगा, बाद में सदगुरु जी के साथ में भी एक वेबिनार आयोजित है पर्यटन मंत्रालय की तरफ से, और बाद में मैं खुद विश्व योगा दिवस के दिन अपने पुराने किले दिल्ली पर स्वयं सूर्य नमस्कार करूंगा। और मैं ये मानता हूं कि लाखों लोग उसके दिन जो कर सकते हैं वो सूर्य नमस्कार करें। जैसे तेजस्वी जी कह रहे थे कि संघ की शाखा में जाने वाला तो सूर्य नमस्कार करता ही है, उसको कहीं अलग से कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक साथ हम करोड़ों लोग करें, ये शायद देश के लिए बहुत जरूरी होगा। हमारा नौजवान स्वस्थ होगा। अगर वो योग के रास्ते पर गया है तो मानकर चलिए कि फिर कोई ना परिवार को चिंता करने की जरूरत है और ना देश को चिंता करने के लिए की जरूरत है, वो देश को देगा ही, ये मेरा विश्वास है। जी, चलिए अब सपना जी से समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिटनेस एक्सपर्ट है और आजकल ज्यादातर युवा चाहते हैं वेट मैनेजमेंट समझना, फिटनेस के सीक्रेट समझना। सपना, एक इंप्रेशन ये होता है कि अगर आपको वेट लॉस करना है, कुछ करना है, तो आप जिम चले जाइए, एक्सरसाइजेस कर लीजिए, कार्डियो कर लीजिए, उससे फायदा होता है, योग से फायदा नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि आज आप हमारे जितने भी सब लोग ये देख रहे हैं, आप समझाएं एज अ फिटनेस ट्रेनर, एज अ वेट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, आप योगा को कहाँ रखती हैं अपने लोगों को समझाने में या लोगों को रूटीन्स देने में? देखिए, जब हम बात करते हैं वेट ट्रेनिंग की या फिर कार्डियो, तो तब जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो बेसिकली इट हेल्प्स यू टू स्टे फोकस, स्टे अवेयर। पर हम जब बात करते हैं योगा की, तो योगा एक्चुअली हेल्प्स यू टेक अ जर्नी विद इन। यानी हम जब योगा करते हैं, ध्यान, आसना, प्राणायाम, तो वो हमें वर्तमान में रखता है। और जो इंसान वर्तमान में रह के, फोकस रख के, अवेयर होके काम कर सकता है, वो ना पास्ट की चिंताओं में डूबा रहता है, ना फ्यूचर के ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटीज उसे असर कर पाते हैं। इसीलिए योगा प्रैक्टिस करना आज के समय में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमें वर्तमान में रखता है, वो हमें बहुत पॉजिटिव रखता है। और हम जितने पॉजिटिव होंगे, देखिए, हम जितना स्ट्रेस से दूर रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। हम योगा करेंगे, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और जब बात करते हैं स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो ध्यान, प्राणायाम, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, एफर्मेशंस, ये सारी चीजें इन नेगेटिव चीजों को धीरे धीरे बदल सकती हैं और हम इनसे बाहर भी आ सकते हैं। तो योगा एक ऐसा जेम है, हीरा है हमारे ही संस्कृति का, जो हमने शायद इतना यूज ही नहीं किया, जो हमने अपने लाइफ में उसका इतना इस्तेमाल ही नहीं किया। बट बिकॉज ऑफ कोविड आई सी सो मैनी पीपल कि जो अभी और ज्यादा योगा के साथ जुड़ रहे हैं, योगा की लाइफस्टाइल के साथ जुड़ रहे हैं। एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव, बिकॉज हम घर में रह के भी जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आसना करते हैं, तो हम काफी रिजुविनेटेड फील करते हैं, जो सिर्फ वेट ट्रेनिंग से नहीं हो सकता। बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग प्राणायाम, व्हेन यू आर डूइंग योगा, तो वो आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव करता है, ब्रीदिंग इंप्रूव करता है, आप में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। तो वो एक बहुत ही अच्छी इवन मेडिसिन है टू फाइट so many negativities which we are seeing today. You said happy hormones and Tejasvi ji was smiling. Tejasvi ji, एक स्ट्रेसफुल लाइफ होती है पॉलिटिशियंस की, आजकल तो सभी की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है। बट जैसा मैंने कहा कि मैं समझना चाहती हूँ, आपने कहा 45 मिनट से 1 घंटा आप देते हैं, तो प्रायोरिटी क्या होती है आपकी? टू स्टे फिट, टू लूज वेट और व्हाटएवर, या ब्रीदिंग से जो हम कह रहे हैं कि बॉडी माइंड बैलेंसिंग है, शांत करना है अपने आप को, टेंशन है उनको रिलीव करना है, क्या करना पसंद करते हैं आप? नहीं, योगा is a one-stop solution for all of these things. So the beauty of yoga is it relieves your stress, helps in weight management, and it's great cardio plus strength training. And
helps your lung capacity. And like Sapna ji very rightly mentioned, after a good yoga session, you feel happy. So it does all of these things together. So I think yoga is like the word yug, the dhatu from which it comes, yuj means union. Yoga is a wholesome exercise. It brings all of these things together in your practice and in your life. जी, निशित जी हमारे साथ जुड़ गए, मुझे बताया जा रहा है, लेकिन चूंकि वो कहीं रूरल एरिया में है तो नेटवर्क नहीं है, तो वीडियो में नहीं है। निशित जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, नमस्कार। नमस्कार। निशित प्रमाणिक जी हमारे साथ जुड़ गए, कूच बिहार से सांसद। निशित जी, एक सवाल जो मैंने दोनों युवा सांसदों से पूछ चुकी हूँ, अब आपसे पूछना चाहूंगी, योग आपके जीवन में कितना महत्व रखता है? क्या आप पर्सनली अपनी लाइफ में रोज योगा प्रैक्टिस करते हैं? देखिए, योग एक अभी ऐसा एक मेरा लाइफ का एक ऐसा अंग बन गया है कि हर रोज मेरा रूटीन के हिसाब से मैं ये योग करता हूँ, और मेरे आसपास में जितना भी मेरा कार्यकर्ता रहता है सभी को मैं योग करने के लिए मैं प्रोत्साहित करता रहता हूँ। और अभी देखिए, जो एक पैंडेमिक सिचुएशन है, इसमें हम लोगों को योग ही एकमात्र ऐसी एक उपाय है जिसके जरिए हम लोग इसको प्रतिहत कर सकते हैं, और हम लोगों का जो इम्यूनिटी पावर है उसको हम लोग बूस्ट अप कर सकते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से अभी जो ये जो कोविड-19 है, इसके साथ लड़ने के लिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो योग का हम लोगों का अभ्यास करना चाहिए। जैसे कि हम लोगों का जो किडनी होता है, किडनी का जैसे हम लोगों का जो यूनिट होता है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं, जैसे ब्रेन का एक यूनिट होता है उसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, ऐसे हम लोगों का जो लंग है जहाँ पर ये कोविड-19 ज़्यादा अटैक कर सकती है, तो ये लंग का जो यूनिट है इसको हम लोग एल्वियोली बोलते हैं। तो ये छोटा छोटा बलून की तरह होता है। तो हम लोग अगर योगाभ्यास हम लोग अगर करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो इससे अगर हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथिंग लेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये हम लोगों का जो इम्यूनिटी है इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे, और मेरा हिसाब से ये पैंडेमिक सिचुएशन में भी हम लोग लड़ सकेंगे। सिर्फ ये कोविड-19 ही नहीं, ऐसा बहुत सारा बीमारी है जिससे हम लोग हर रोज योगाभ्यास करने से हम लोग वो सब बीमारी से दूर रह सकते हैं। जी, संगीता रेड्डी जी, सभी लोग कोरोना की पैंडेमिक की बात कर रहे हैं। आप मुझे सुन पा रही हैं? अच्छा, अब जब हॉस्पिटल्स में लोग हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। एक है कि बीमारी से परेशान है, वी आर लूजिंग सो मेनी लाइव्स। दूसरा, लोग डरे बहुत ज्यादा हुए हैं। अब ऐसे में जो हम माइंड बॉडी की बात कर रहे हैं, बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं, कि काम रहना भी बहुत जरूरी है। इलाज तो अपनी तरफ एक तरफ चल रहा है। मैं पढ़ रही थी कि आप मेडिसिन के साथ साथ आप योगा को भी अपने प्रोफेशन में उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करती हैं। क्या कोई खास कोशिशें आपके हॉस्पिटल्स में की जा रही हैं इस वक्त कि जो लोग हैं उनको योगा में ज्यादा इंट्रोड्यूस किया जाए, इनकरेज किया जाए? क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? So for quite a few years now, we have encouraged the use of yoga. Preoperatively, the use of pranayama enhances the lung capability and therefore accelerates recovery post-surgery. It's also a very important tool in the treatment of asthma, and this has been scientifically proven with multiple research initiatives, including a research which was done almost 40 years ago. By my father, even pre-Apollo. There have been multiple scenarios of the correlation between stress and the enhancement of disease or the acceleration of disease, including non-communicable disease. And yoga is a well-known methodology to enable the body to keep balance. And this concept of balance is both physical and mental. And therefore, I think yoga is extremely important. As I was saying earlier, we have over 150 physiotherapists across the Apollo system trained in yoga with the ideology that this should be incorporated as a part of rehabilitation and of strengthening the individual. When it comes to the aspect of COVID, we haven't had time, but I did hear Satguru say that there is a very tremendous asana called the Simha breathing. I think it simulates something like a lion, and this is a kind of a safeguard against COVID. So I would truly encourage people to go onto the site. We haven't had time. We've been battling literally every moment
with the disease, but those who can, please go to the Isha website, look at this asana and see if you can learn it. But ultimately, I believe that yoga has many, many cures and many abilities to strengthen immunity, ward off major lifestyle-related disorders, and must be incorporated into our daily lives. जी, अब मेरा एक सवाल आप सभी लोगों से, हम शुरुआत मंत्री जी से करेंगे कि हम सबको समझ में आ रहा है कि योगा कितना इम्पोर्टेंट है। हम सबने ये भी कहा कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको अपनी लाइफ में, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको अपने लिए पर्सनली सबसे अच्छा आसन कौन सा लगता है जिसको आप प्रैक्टिस करते हैं और क्यों? तो मंत्री जी आपसे शुरू करें। मैं तो पद्मासन, चूंकि मैं नर्मदा परिक्रमा में भी था, तो सामान्यतः जब हम पूजन करने बैठते हैं या बाकी जगह पर स्थिर चित्त से बैठते हैं, तो सुखासन या पद्मासन मेरे लिए, मैं मानता हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी और उतार चढ़ाव देखे हैं, तो मैं उसको ज्यादा पसंद करता हूँ। और उसके लिए मुझे कभी हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी पद्मासन लगाने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो मुझे सहज, और वो अन्य कारणों से भी होता है, लगातार बैठना, पूजन के समय लगातार कोई साधना करना, तो मेरे लिए महत्वपूर्ण, मैं अधिकांश जीवन में उसको देखा है, या पैदल चलता हूँ। तो क्या आज आप दूसरों को, सबको, युवाओं को सलाह दे सकते हैं कि आजकल इतनी कम उम्र लोगों को घुटने की तकलीफें शुरू हो गई हैं और आप कह रहे हैं कि आप पद्मासन में बैठते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होती? मैं तो लंबा आदमी भी हूँ, और इसलिए मुझे लगता था कि ले जाऊंगा तो शायद तकलीफ मुझे ही होगी, पता चला मुझे छोड़ के बाकी सबको हुई। तो कहूँ कि आपदा के समय भी आपके को सहयोग करने का मन होगा, लेकिन शरीर साथ नहीं देगा तो आप मदद नहीं कर पाएंगे। आपके पास में किसी की मदद करने की इच्छा है, लेकिन अगर आपका मन ही नहीं है, डर रहे हैं आप, तो मुझे लगता है कि योगा इन सब बातों से पार कर देता है। और सपना ने जो बात कही ना, तो वो बिल्कुल बड़ी सामान्य शब्दों में उन्होंने कही है कि आखिरकार अब आप वर्तमान या भविष्य की चिंता के बगैर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि स्वस्थ शरीर चाहिए, मन चाहिए, और सब कुछ होने के बाद भी मन इच्छा ही नहीं है आपकी किसी की मदद करने की। लेकिन मैं ये मानता हूं कि योग के रास्ते पर चलने वाला सदैव सकारात्मक होता है, वो देने का मन रखता है, और देंगे आप तभी जब आप देने लायक होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये बेहतर, मैं नौजवानों से कहूंगा कि मैं तो कहूंगा कि हम योग के साथ जीने की आदत डालें, और यही शायद हम दुनिया को, शायद हम कुछ मदद करने में समर्थ होंगे। ये इस कोरोना ने एक मौका दिया है आपको अपना स्वयं का आकलन करने का, और ये शायद भाग्य बन सकता है। जी, तेजस्वी, आप कौन से आसन करना पसंद करते हैं और क्यों? मुझे सर्वांगासन और हलासन बहुत पसंद आसन है, क्योंकि सर्वांगासन में जब उनका नाम ही बोलते हैं सर्वांगासन, सर्वांग, हाँ, so it's a very wholesome asan. I really like that. And halasan is very good for your heart, for your digestive organs, and for cleansing of the purification of blood. So those two asans are I really like. I also like Lolasan, which is I also like Dhanurasan, which is again strengthening for your spine and the back end. The back. So these are some of my favorite asans. I just want to, because this is a parting note. This is maybe the last segment of the webinar. I just want to take a couple of minutes to give a few thoughts on what all of us can do to promote yoga as a lifestyle. Yoga is not just physical exercises. Yoga is a philosophy of life, how we approach life. Yoga is putting into practice the great philosophies of India, whether it is Advaita, whether it is the great truths of the seers. All of these can be put into practice through yoga. So, one, we must insist and emphasize that yoga is a very indigenous philosophical approach towards life, and understand the philosophy behind the exercises and practices. This is first point. True. The second point is yoga is a wholesome lifestyle solution. So you cannot lead a life which is unyogic.
but do half an hour or 45 minutes of physical exercises and think that I am a yogi or a yogic practitioner. Very valid point. It's a wholesome physical, it's a wholesome lifestyle change. And in that, what we eat, what we think, and what medicine we consume, how we take care of ourselves and our thoughts, everything play a very important role. And I think just like our Honorable Prime Minister has made yoga a very important buzzword for the whole world today, and the world, countries across countries are taking to yoga in a very enthusiastic fashion. Along with yoga, we must also take the indigenous traditional healing practices of Ayurveda, and because Ayurveda and yoga are like two sides of the same coin. So both these practices must be propagated around the world. This is the second most important aspect that all of us must recognize during the International Yoga Day celebrations. The third and the final point is, for a country that is as big as India, I'm sure Sangeeta ji will agree with me, given her expertise in public health. It is impossible to cater to the health of the country's population if we are not investing in preventive healthcare and good lifestyle. The reason why Prime Minister is encouraging young Indians especially to be healthy and adopt a healthy lifestyle is because non-communicable diseases form the biggest, are the biggest killers in India. And tertiary health services cannot cater to the population of our size. Therefore, a preventive good health, good lifestyle, yogic practices, a good healthy disease preventive lifestyle is very, very crucial even in our public health policy. So I think all of these things together will contribute towards a more meaningful International Yoga Day celebrations. And I congratulate and thank the Minister for Culture, Prahlad Singh Patel ji, and FICCI for taking this initiative to emphasize to our young people that Sharira Madhyam Khalu Dharma Sadhanam. Whatever you want to do, you have to keep your body fit. If you have to, Sharira is good, you can achieve everything. So thank the ministry, and I thank Sangeeta ji, I thank everyone on the panel for being here. And I also wish my dear friend Jamyang very safe and very happy International Yoga Day. I hope to see him very soon. See you, bro. And we will wait for your video of Surya Namaskar. Prahlad Singh Patel ji ने जो कहा है, वो आप tomorrow morning, I am on the 21st of on International Yoga Day. I am doing a live webinar where I'm teaching. Rather, I'm guiding a few yoga enthusiasts in association with Cult. So yes, so we are doing some yoga. Fantastic. That is really nice. क्योंकि आप जैसे लोग, you can encourage many more youngsters to take up yoga. Thank you so much for doing that. जामयांग जी, आपके पास मैं आऊंगी, बड़े पर निशित जी क्योंकि ऑडियो से ही हमारे साथ जुड़े हैं, उनको थोड़ा इन्वॉल्व कर लेते हैं. निशित जी, मेरा सवाल आपने सुना होगा. आप कौन सा आसन खुद करना पसंद करते हैं और क्यों? क्या फायदा लगता है आपको उससे? देखिए, पहले तो ये कहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जो बोला पद्मासन मैं हमेशा करता रहता हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादा स्पेस का जरूरत भी नहीं होता है. ट्रेन में या पर जहाँ भी बाहर भी रहता हूँ वहाँ भी कर सकता हूँ मैं. ये योगाभ्यास जो है ये इसको कंटिन्यू रखने में हेल्प करता है. और मेरा सबसे मैंने जो करता हूँ शीर्षासन मैं हमेशा करता रहता हूँ. और कभी कभी अगर ज्यादा समय मिलता है तो धनुरासन का भी मैं करता रहता हूँ. देखिए, मैं युवा पीढ़ी से खासकर कहना चाहूंगा, जब स्वस्थ उत्तम होता है तो जीवन में नई ऊंचाई और लक्ष्य हासिल करने का जज्बा बढ़ जाता है. थका हुआ शरीर और टूटे हुए मन से कभी सपनों को साकार नहीं किया जा सकता. इसलिए मैं युवा पीढ़ी को निरंतर योग से अपने दिनचर्या में बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, हमेशा करता रहता हूँ. और मैं विशेष रूप से मेरा बड़े भाई तुल्य माननीय मंत्री जी प्रहलाद सिंह पटेल जी को मेरा हृदय भरा नमस्कार एवं साधुवाद मैं बोलना चाहूंगा. इसी के साथ साथ मेरा साथी सांसद, लद्दाख के सांसद श्री जमयांग जी और बेंगलुरु की तेजस्वी सूर्या जी को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, मैं मेरा नमस्कार बोलना चाहता हूँ.
मैं वीडियो के साथ जुड़ नहीं पाया, इसलिए मैं व्यथित हूँ, क्योंकि मैंने अब लोगों को पता ही होगा कि भारत चाइना बॉर्डर में जो थोड़ा हम लोगों का जो बहुत सारे हिंदुस्तान की आर्मी का शहीद हो गया, तो मैंने एक शहीद का अभी तर्पण में गया था, तो वहां से मैं लौट रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियो के साथ जुड़ नहीं पाया। फिर भी मैं उसके साथ साथ जितने भी लोग अब लोग ये इसके साथ जुड़े हुए हैं, सभी को मैं मेरा तहे दिल से मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और हम लोगों का प्राइम मिनिस्टर जो निरंतर जो प्रयास कर रहा है, our prime minister has belief on youth, that's why he always says youth India, strong India, youth India, opportunities of India, and fit youth, strong India. We have seen that entire world is actively taking part in International Yoga Day. They have made their daily routine of yoga as the first light of sun rays touches the house. Whole world is taking yoga as a primary fitness tool. इसलिए आने वाले 21 जून 2020 यानी रविवार परिवार के साथ मिलकर योग करते हुए छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखने का संकल्प लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया निशित जी। शीर्षासन तो काफी मुश्किल आसन है और वैसे भी इस साल का थीम है योगा एट होम, योगा विद फैमिली, तो मुझे लगता है हम सबको ये करना चाहिए। जामयांग जी, योर टर्न टू शेयर योर आसनास विद अस and your plans for International Yoga Day also. यूजुअली मैं सूर्य नमस्कार पूरा स्टेप जो है मैं ज्यादातर करता हूँ, और साथ ही साथ उसमें से जो मेरे पसंद के जो पोज है, स्टेप्स है, सुखासना जो है, जब क्योंकि आपको पता है एक मेंबर पार्लियामेंट के लिए बहुत एक स्ट्रेसफुल लाइफ होते हैं, और खासकर मेरा तो सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे जगह है जहाँ पे रोड भी नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, वहाँ पहले एक मैसेंजर को भेजना होता है, फिर उसके बाद खुद पैदल चलना, घोड़े पे चलना होता है। तो ऐसे स्ट्रेसफुल लाइफ में मैं कोशिश करता हूँ कि पद्मासना पे सुखासना पे बैठ के फिर विपासना कभी कभी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। 5 मिनट का आनापाना करके फिर 10 या 15 मिनट मिनिमम जो है विपासना का प्रैक्टिस योगा के साथ साथ मैं करता हूँ। और जब प्रवास पे जाते हैं तो बहुत सारे पैदल चलना होता है। उसके कुछ दिन पहले तैयारी के रूप में जो है वज्रासना जो है मैं ज्यादातर करता हूँ, सिटिंग ऑन हील्स जो है वज्रासना, उससे आपका जो खासकर लेग का, पाँव का जो है बहुत फिटनेस अच्छा रखता है। और पद्मासना जो माननीय मंत्री जी ने कहा था, जो उसमें एक लोटस पोजीशन पे बैठ के अपने ध्यान को कंट्रोल करना कि आपका माइंड कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ नहीं जा रहा है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ें जो है करता हूँ। और अभी इस योगा दिवस पे योगा विद फैमिली तो करेंगे ही, और साथ ही साथ लद्दाख के भाषा हमारा अलग होते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र लद्दाख नहीं आते हैं। लद्दाख के अपने भाषा में योगा को किस तरह हम लोगों में प्रचार कर सकते हैं, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ कि एक लद्दाखी वर्जन योगा का एक्सप्लेनेशन एक अच्छे रूप से कैसे हो सकता है। अभी तो माननीय मंत्री जी हंस रहा है, लेकिन गाँव में गया हूँ इसलिए मैंने कहा था ये खुद योगी है। निषेध का फोटो नहीं दिखा, नहीं तो मैं इसलिए मैंने खुशी अपनी जाहिर की थी। ये तीनों लोग चाहे सूर्या हो, प्रमाणिक हो, या ये वास्तव में जिंदगी जीते हैं, योगा के साथ जीते। मैं कह सकता हूँ ये बात। जी, और अभी जितनी तनावपूर्ण स्थिति में वहां पर है, लेकिन उसके बावजूद एक एक चेहरे पर शांति है जामयांग जी। यहाँ के हर लोगों के जिंदगी में एक शांति है, क्योंकि मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, लद्दाख में अब किसी के पास भी जाओ, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है एक सबसे बड़ा वेल्थ यहाँ लोगों के पास है। यहाँ के लोग करोड़पति नहीं बनना चाहते, यहाँ के लोग बहुत बड़ा बड़ा नाम लेके नहीं घूमना चाहते हैं, लेकिन जो जिंदगी है उसी को सेटिस्फेक्शन लेके, जिस तरह लॉर्ड बुद्धा ने धम्मपद में ये कहा है कि सेटिस्फेक्शन इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। जब आपके पास सेटिस्फेक्शन हो तो आपके पास सब कुछ है। जब आपके पास सेटिस्फेक्शन ही नहीं है तो आप जितना ऊंचे पाद पे बैठो, जितना अमीर बनो, तब भी आप चाहेंगे कि वहां पे मैं कब्जा करूं, वो मैं कमा लूं।
लेकिन कभी नहीं होगा। इसलिए यहाँ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन के जो रिचनेस है वो बहुत है। इसलिए यहाँ जो है तनावपूर्ण सिचुएशन में भी लोगों के चेहरे पे रौनक जो है आपको झलकने को मिलेगा। बहुत बहुत खूबसूरत बात कही है, ऑर्गेनाइज करने के लिए। बहुत खूबसूरत बात। सपना, अब मैं आपसे नॉट एज अ वेट ट्रेनर बट एज यू योरसेल्फ मैं बात करना चाहूंगी। मैं आपके बारे में पढ़ रही थी और आई वाज सो इम्प्रेस्ड। बहुत वजन आपने कम किया, वो बिफोर एंड आफ्टर पिक्स टाइप में देख रही थी आपकी। आई थिंक मोर देन 30 kgs। जी, आई लॉस्ट 33 kg इन अ ईयर। इमेजिन। सो अब मैं चाहूंगी आप अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताएं। ये जो आपका वेट लॉस रहा, इसमें योगा ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि योगा हेल्प्स यू इन इंट्रोस्पेक्शन। योगा आपको आपसे ही जान पहचान करवाता है, बिकॉज हम इतने सुबह से लेके शाम तक लोगों को इम्प्रेस करने में बिजी रहते हैं कि रात को खुद डिप्रेस होके सो जाते हैं। सो इन आर्टिफिशियल चक्करों में हम इतने ज्यादा व्यस्त हैं, तो इट रियली हेल्प मी कनेक्ट विद माई सेल्फ। बट योर फेवरेट आसनास? Okay, my favorite asana is Vajrasan for the simple reason कि मैं always खाने के बाद, चाहे lunch या dinner, दोनों के बाद at least 5 to 10 minutes I do Vajrasana on a regular basis. It really helps in digestion और वो भी एक weight loss में बहुत help करता है. Hence, Vajrasan is my favorite. But जब योगासना की बात करते हैं तो आई कांट अफोर्ड टू हैव अ फेवरेट, बिकॉज सारे आसना उतने ही इम्पोर्टेंट है, सारे इतने जेन्युइनली हम प्रैक्टिस करें, वरना कई लोग का फेवरेट शवासन ही होता है। तो और बालासन। सो अगर आपको एक दिस इज अ ब्यूटीफुल जर्नी। मुझे इतना पता है कि योगा आपको एक एक बदल देता है एक इंसान के तौर पे भी, क्योंकि आप ऐसे सोचने लगते हो कि अगर मैं एक एरिया लाइफ के एक एरिया में कुछ हासिल कर सकता हूँ तो आई कैन टेक द सेम कंट्रोल इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ, बिकॉज इफ यू आर हैप्पी इन वन कंपार्टमेंट ऑफ योर लाइफ, आई थिंक वो लेसन, वो लर्निंग, वो डिसिप्लिन, वो कमिटमेंट, वो रूल्स आप सारे कंपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो वो बहुत हेल्प करता है। और इसलिए मेरा सिर्फ योगा एक आसन के तौर पे सीमित नहीं है मेरा अंडरस्टैंडिंग। वे ऑफ लाइफ, इट इज डेफिनेटली अ वे ऑफ लाइफ, बिकॉज आप ऑनेस्ट रहते हो पहले तो खुद से। जब भी आप योगा परफॉर्म करते हो, ध्यान करते हो, तो पहले तो खुद से ऑनेस्ट हो जाते हो, और जो इंसान खुद से ऑनेस्ट रहता है वो फिर अपने हर काम में इतना शिद्दत से करता है कि उसमें उसका नाम झलकता है। और आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग चाहे आजू बाजू कितना त्योहार हो, फेस्टिवल हो, वो फिर भी भीड़ में भी तन्हा है, अकेला है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से खुश नहीं है। और जब आप योगा करते हो तो आप अंदर से खुश रहते हो, तो आपका परसेप्शन टुवर्ड्स द वर्ल्ड चेंजेस। हेंस यू फील कि सारी चीजें आप पॉजिटिव, पहले तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, जैसे पेंडेमिक है तो भी आप एक्सेप्ट करके उसमें आप क्या कर सकते हो वो चीजें आप इम्प्लीमेंट करोगे, रादर देन कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मैं क्यों इतना नेगेटिव चीजें हो रही है। और जब हम लोगों को सिखाते हैं, आई ऑल्सो ट्रेन एंड एनकरेज पीपल इन कमिंग आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, इन चेंजिंग देमसेल्व्स एंड पुशिंग देयर लिमिट्स एंड इम्प्रूविंग एंड बिकमिंग बेटर। पर जब आप योगा एज अ लाइफस्टाइल, एज एन आइडियोलॉजी फॉलो करते हो, तो उस इंसान को कभी आपको नहीं सिखाना पड़ेगा कि कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आए या फिर चेंज को कैसे एक्सेप्ट करे। तो बिकॉज योगा में क्लियरली आप समझ सकते हो कि परिवर्तन ही एक स्थिर चीज है। परिवर्तन में एवं स्थिरम अस्ति। परिवर्तन, चेंज को आप सटली एक्सेप्ट कर लेते हो, उसे हम योगा, तप, ध्यान ये सब कहते हैं। सो ये सारे जो मॉडर्न डे प्रीचिंग्स चल रहे हैं कि हाउ टू चेंज, हाउ टू कम आउट ऑफ स्ट्रेस, हाउ टू डू अ वर्क लाइफ बैलेंस, तो सिर्फ आप योगा एज अ वे ऑफ लाइफ समझ लो, सीख लो, इम्प्लीमेंट करो। नॉलेज एंड इम्प्लीमेंटेशन में गैप ना रख के जो नॉलेज है उसे इम्प्लीमेंट करो, तो फिर उस इंसान को कभी ये सारी चीजें सिखानी नहीं पड़ेगी, वो बाय डिफॉल्ट वो सारी चीजें करेंगे। परफेक्ट। संगीता जी, डू यू हैव अ फेवरेट आसन? Surya Namaskar is mine because it's quick and it covers everything, and we're very stressed for time.
but I think it's also important to talk about pranayama. I think the breathing is the most important aspect. That's the whole story of life. And so these two are essential. If you talk about favorite, then Shavasana is the best one. Yeah, rightly said by Sapna also. चलिए, time to thank you all. इतनी मजेदार बातें हुई, लेकिन एक बार फाइनल बाय से पहले मैं चाहूंगी मंत्री जी एक बार फिर से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको वो 10 मिलियन सूर्य नमस्कार का मैसेज आप एक बार फिर से दे दें बिफोर आई से बाय टू एवरीवन। मुझे लगता है कि मैं सबसे कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इस महामारी के बीच में अपने काम के घंटे 2 घंटे और बढ़ा दिए। इससे बड़ा प्रमाण और आइकान कोई और नहीं हो सकता। जो आयु के कारण शिथिलता की बात करते हैं वो योग से कैसे दूर होती है उसके सबसे अच्छे उदाहरण देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे सारे जो यंगस्टर्स हैं जिनने, मैं सबसे पहले सुनीता जी को भी धन्यवाद करूंगा, हमारे तीनों सांसद जिनको मैं निजी तौर पर जानता हूं, हमारे जामयान जी, तेजस्वी जी, प्रमाणिक जी, सपना मेरे मित्र की बेटी भी है और आज मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में आपका संचालन भी बेहतर रहा है। और इसलिए मैं मानता हूं कि मुझे तो ये लगा कि ऐसे कार्यक्रमों को हमें समय समय पर चलाते रहना चाहिए। और मेरा मत सिर्फ ये है कि 21 तारीख को जो जहां है, जैसे तेजस्वी तो मास्टर है तो उनने कहा कि हम अलग से वो करेंगे, पर जो जहां है मुझे लगता है कि सूर्य नमस्कार उसको करना चाहिए। मेरे जैसा व्यक्ति जिसकी 2 बार 5 पसलियां टूटी हैं, इसलिए मुझे कुछ प्रतिबंध लगे थे, इस कारण से मुझे कुछ चीजें छोड़नी पड़ी, तो मुझे पूछ कर ही करना पड़ता है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ। इसलिए मैंने आपको पद्मासन की बात कही है कि पैर मेरे सुरक्षित हैं तो बाकी चीजें मैं करता रहता हूँ। और इसलिए मैं सबसे यही विनती करूंगा कि 21 तारीख को योग की किसी न किसी विधा में शामिल हों या लोगों को शामिल करें, यही मैं विनती करूंगा। और शायद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रति भी ये सच्चा सम्मान होगा जिनने पूरी दुनिया को योग देकर एक बेहतर निमित्त वो बने हैं। और कोरोना के बीच में दुनिया को औषधियां बांटकर जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय संस्कृति की पताका को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, मुझे लगता है ये हम सब के लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में उसको 21 तारीख को जरूर किसी बहाने जरूर स्वीकार करें। यही विनती करते हुए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। ऋचा जी, उसमें आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। संगीता जी, any final line from you? You want to say something as one of the organizer? No, it's a great pleasure doing this. I just wanted to respond very quickly to Tejaswi ji that I completely agree that for primary health and preventive healthcare, yoga is a very critical tool. And we are running about 150 primary healthcare centers for the government. And we've incorporated yoga into that. So Tejaswi, I completely agree with you. So every Sunday, we hold a yoga class over there. The scaling of this in the Health and Wellness Center model is part of the government's plan, and I think the private sector is happy to play a role, or we at Apollo are happy to play that role. I'll also request and invite all of you to please talk to FICCI members one day and inspire them about yoga. So Mantri ji, we will do that on International Yoga Day. Thank you, Sangeeta ji. And Apollo, there are at least 3 Apollo hospitals in my constituency. And they have been an innumerable Apollo pharmacies as well. So big value addition to the people of my constituency. So thank you so much for everything that you have been doing. Nice to meet you all. Namaste ji. चलिए, थैंक यू सो मच। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि योगा युज शब्द से आया है जिसका मतलब है जोड़ना, तो जैसे योगा हमको बहुत सारी चीजों से जोड़ता है, मुझे लगता है कि अब जरूरी है कि योगा को बहुत चीजों से जोड़ा जाए। वो मेडिकल प्रोफेशन की भी बात हुई, एजुकेशन शिक्षा के साथ उसको जोड़ना, बच्चों को शुरू से स्कूलों में अगर सिखाया जाना शुरुआत हुई है तो बहुत सारी चीजों के साथ अगर योगा जुड़ जाए, सो आई थिंक इट विल बी नमस्ते योगा, ये जरूर 21 तारीख को करेंगे तो ठीक रहेगा, तो उससे इकट्ठे हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका एक बार फिर से। नमस्ते योगा।